views. At this proud moment, I'd love for the honored chief guest, Dr. Muhammad Aslam Parvez sir, to display the Cambridge Affiliation Certificate and share his views. Sir, please. Thank you and good morning, everybody. And the respected director, the principal, the staff, administration people, all the behind scene active people, their children and their parents. In fact, it is an honor for me for being here, though virtually, at a place which I would confess has been my dream as well. And I'm happy that one of my dreams has been fulfilled at a distant place, of course, far away from me. But it is a great thing, and I feel honored particularly to have this opportunity to here it is. So I'm happy to release the certificate which says that this is so certified that the Creator International School has registered as a Cambridge International School. It is a great achievement, and as I understand, the credit goes to, I would say, the dreamer who has dreamed for it, and the teachers and the faculty and administration and people who in fact materialized it. In fact, besides the quality which this curriculum ensures, and the quality which is ensured and taken to the students by the able faculty, which I must say has been selected with due care, because I have been in education administration and have remained associated with a number of schools. The most challenging as well as most faulty thing which I find in our institutions is the way we engage people, we recruit people. So I'm happy that the due justice has been done here. And the second thing which I am in fact eager to share and express my views is the vision of the director to introduce scriptures to our youngsters. I must confess that I have been to such programs, I don't remember how many times, but this is the only school, and I believe may remain only, where I find a youngster reciting Bible in Greek language. To me, this is very important, and it is a scientific approach to consult the originals. If all of us, I would like to share and to remind all of us, because most of us have been researchers, that during our research, when we refer to a paper, I remember my days, unfortunately, that paper, the original was in German language. I used the abstract and my supervisor said, "What have you done? Go to a German person or read German, read the paper and come back to me." So going to originals is the most important thing and is the scientific thing. So when the scientists in fact run the show, things are different. Though now, of course, things have changed and science has changed, scientists have changed. There's a lot of things because we are a part of adulterated society where everything has found some sort of mixing, and there again a scientific approach is needed. So this I say, you see why I am so much, I would say, passionate about the originals and the scripts. Because I am born in a Muslim society. And most of the people like me
who claim that they are Muslims, very unscientifically, I would say, because they cannot prove scientifically that they are Muslims, because they are not Muslims. Why I am saying it? Because why I am a Muslim, I will not say an average person, but I will say my example. Why I am a Muslim? Because I am born to Muslim parents. I have been given a Muslim name, and I am made to believe that I am a Muslim, and I must take it. Now, this is a life and death question. Why should I take it? We never question it. A child born to carpenters will never be a carpenter unless he learns the trade and puts it to practice. A kid born to working doctors, professionals, people of medicine will never be a doctor unless until he qualifies and gets the due training. So why can I be a Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Jain, or anybody, or even a human being, without being taught humanity or Islam or Judaism or Christianity? So this is the most fundamental scientific question we must ask, and we must teach our students to ask. This is a question of existence, the question of identity. Who am I? And why am I? What I am supposed to do? Just have fun, have a good life. As our youngsters has a slogan that this is my life and I have every right to enjoy it. Do of course. But first, find your bearing, find your foot, and find the terrace or the terrain below your feet. This is where originals matter. This is where the scriptures matter. And this is why in fact, the moment I realized it, I would say return to Quran. Because I was fed and made to understand that I am a Muslim, then I thought that I must go to my scripture first and see what it says. And I must share with you, it was a wonderful discovery. Discovery of the system as well as discovery of my own self. And through which I am still going on. And I am sure it will continue till I die. Because the process of discovery of the universe, of the God particle, or of the God, or of the human being continues, outward as well as inward. And the most important which I discovered was that the Islam which I am asked to practice is a minuscule, if I can use this word, minuscule of the Islam which reality in the scriptures. With the permission of the director, I would like to switch over to Hindustani because I want to convey the message to all the parents. And I believe all of us understand Hindustani. So I would have your permission to switch over to Hindustani. क्योंकि मेरे लिए ये मैसेज बहुत अहम है उन पेरेंट्स तक पहुंचाना जो यहाँ मौजूद हैं और मेरे सब साथी जो मैं समझता हूँ क्योंकि जो लोग मुंबई वाले होते हैं वो तो सब चीज जानते हैं, हर जबान को जानते और समझते हैं, तो वो हिंदुस्तानी को भी समझते हैं। यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे लोग होंगे कि जो इस बात को नहीं समझते होंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जो मैं कहना चाह रहा था कि जब मैंने कुरान को समझ के पढ़ा ओरिजिनल सोर्स से, ट्रांसलेशन से नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन के साथ अपने इश्यूज हैं, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो यू आर रीडिंग समथिंग विद सम अदर्स माइंड, तो यू मस्ट, that's why I appreciate the Greek approach to Bible, the Sanskrit approach to Gita, and the Arabic approach to Quran. We must understand, return to the original. तो जो मैंने कुरान से समझा वो ये समझा कि आज इस्लाम के नाम पे जो कुछ प्रैक्टिस होता है वो तो अगर मुझे आप कहने दें कि इस्लाम बराए नाम ही है, क्योंकि बहुत सारी जो तब्दीलियां हुई और उसकी वजह सिर्फ क्या थी कि हमने कुरान को छोड़ दिया है, उसी तरह जिस तरह गीता को छोड़ दिया। मैं मेरी जिंदगी का एक्सेप्ट ये जो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मैं था, बाकी जितने इंस्टीट्यूशंस में रहा, मेरी
कलीग्स और स्टूडेंट्स मेजोरिटी नॉन मुस्लिम्स थे, और मैंने उनको हमेशा पढ़ाते हुए, मैं बॉटनी पढ़ाता था, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ाया, एनवायरनमेंट पढ़ाया, फिजियोलॉजी पढ़ाया, बहुत कुछ पढ़ाया, लेकिन उन्हें ये जरूर पढ़ाता था कि तुम अपनी स्क्रिप्चर से जोड़ो, थोड़ा टाइम निकालो, गीता पढ़ो, वेद नहीं पढ़ सकते, गीता पढ़ो और उसे समझ के पढ़ो और उन संस्कारों को अपनाओ। श्री राम का जन्मदिन जरूर मनाओ, लेकिन ये भी तो देखो उनके आदर्श क्या थे, वो क्या करते थे अपनी जिंदगी में, तुम ऐसा क्यों नहीं करते। आप मिलादुन नबी मनाइए, चलिए, अगर आपको, चूंकि हम लोग सेलिब्रेशन के बहुत शौकीन है, फाइंड हमारे भी है, हमें हमेशा बेचैन रहते हैं कि कुछ मनाने का मौका मिल जाए, तो चलिए प्रॉफिट की बर्थडे भी मना लीजिए। लेकिन उस प्रॉफिट ने क्या किया था, एक मैं स्कूल में, यहाँ दिल्ली का अच्छा स्कूल है, मुस्लिम मैनेज है, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स नहीं है जो आपके हैं, और वो कभी हो भी नहीं सकते, खासतौर से जो वैल्यूज हैं आपके यहाँ, क्योंकि सही मुस्लिम स्कूल वो है जो टोटली न्यूट्रल हो टुवर्ड्स रिलीजन और सेकुलर हो। ये चीज मैंने आपके यहाँ देखी, और इसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे हुजाई में दिखा, जो बदर साहब के स्कूल आसाम में चलते हैं, और वहां मैंने स्टेज पे, मैं उनका चीफ गेस्ट था 2 साल पहले प्रोग्राम में, तो मैंने यही कहा था कि मैंने बहुत कम ऐसे मुस्लिम एनजीओ देखी हैं जो इतनी बेनिफिशियल हो नॉन मुस्लिम्स के लिए, जिनके इंस्टीट्यूशंस में इतनी अच्छी तरह वेलकम किया जाता हो नॉन मुस्लिम्स को। तो बदरुद्दीन अजमल साहब के इंस्टीट्यूशंस में मैंने आसाम में ये चीज देखी थी। वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और मेरिट वो नहीं थी जो आपके यहाँ है यकीनन, क्योंकि जो ये बहुत डिपेंड करता है कि विजनरी कौन है, जो ख्वाब देखता है वो एक होता है, और फिर उसको जो मिल के साथ लोग टीम बन के बनाते हैं, तो वो अल्टीमेटली ये चीज होती है कि मैंने ख्वाब क्या देखा, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ये बड़ी अहम चीज थी जो करना चाहने वाली बात है। तो हम लोगों ने जिस तरह पैदा हुआ बच्चा मुसलमान हुआ, इसी तरह उसको जो सिखाएगा कि नमाज सिखा दी, रोजा सिखा दिया, इनकी अहमियत से मैं इनकार नहीं कर रहा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कुरान इज नॉट फोकस्ड ऑन इट। कुरान सिर्फ इसी की तो बात नहीं करता ना, कुरान बहुत कुछ बात करता है, और इन्हीं के सिस्टम्स के थ्रू करता था जिनको आज हमने रिचुअलाइज करके एक रिचुअल बना दिया है। मैं कुछ फंडामेंटल चीजों की बात करूंगा आपसे इस्लाम के बारे में, जो मेरे पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि बहुत अहम चीज ये है कि मेरे घर में जो बच्चा पैदा हुआ, मैंने उसकी ग्रूमिंग कैसे करी, और इसके लिए मैं एक बहुत बेसिक जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कुरान का, जो सूरह नहल की आयत नंबर 90 में आता है, और हम में से जो मर्द हजरात जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, तो वो जानते होंगे कि अमूमन खुतबे में ये आयत शामिल की जाती है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईता ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। हमारी मेजॉरिटी इसको इस तरह समझती है कि खुतबा खत्म, खड़े हो जाओ, ये आखिर में पढ़ा जाता है। यामुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह तुम्हें इंसाफ का हुक्म देता है, डू जस्टिस। और अरबी में चूंकि रूट वर्ड्स का मैटर है, बल्कि रूट वर्ड्स से मुझे याद आए कि क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है इनमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये चाहे ग्रीक हो या संस्कृत हो या अरबिक हो, कि वहाँ ये जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे रूट वर्ड के अरबिक में है, इसमें आपको बहुत स्कोप और विजन होता है उस वर्ड को उस जगह यूज करने के लिए, क्योंकि जब हम अल्फाबेट ए किसी वर्ड में यूज करते हैं तो उसको आप उसी जगह रख सकते हैं जहाँ ए आना है, जैसे एप्पल, लेकिन रूट वर्ड उस वर्ड को इतने मीनिंग्स और डायमेंशंस दे देता है कि आप उसको एप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हैं एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट सिचुएशंस एंड रिमेन्स द सेम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो रूट वर्ड के हिसाब से मैंने कुरान को समझा, और वही मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा था कि अगर कुरान के मैसेज को हम समझते हैं, और उसमें से एक मैसेज से मैं आपसे बात कर रहा था कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह आपको इंसाफ का हुक्म देता है, अदल का। तो अदल के मादे में रूट वर्ड बेसिस पे एतदाल भी आता है, मीन्स मिडिल पाथ, मियान रवी, बीच के रास्ते पे चलो, अवॉइड एक्सट्रीम्स। यानी अल्लाह का ये हुक्म है कि अवॉइड एक्सट्रीम्स,
हुदूद पे मत पहुंचो, बीच के रास्ते पे चलो, फॉलो द मिडिल पाथ एंड ऑलवेज डू जस्टिस। अब देखिए, यहां मैं ये चीज कहूंगा कि इंसाफ या जस्टिस जो है वो हर चीज से होता है, एंड इट बिगिंस एंड स्टार्ट्स विद रिलेशनशिप्स। इंसाफ रिश्तों के साथ भी होता है। तो जब आपके घर बच्चा पैदा हुआ तो क्या आपने इंसाफ किया, हक अदा किया बाप होने का, माँ होने का? और जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुमने इंसाफ किया? हैव यू डन जस्टिस बीइंग ए चाइल्ड, बीइंग ए सन और बीइंग ए डॉटर? तो ये जो रिश्तों का जस्टिस है, और ये बहुत अहम है, क्योंकि इस बच्चे के साथ जस्टिस ऐसा ही है जैसा एक कुम्हार है, वो जब चाक पे गीली मिट्टी लाके रखता है और एक बर्तन बनाना चाहता है, तो अगर वो इस बर्तन के साथ इंसाफ नहीं करता, मान लीजिए वो एक लोटा बना रहा है या हांडी बना रहा है और इंसाफ नहीं हुआ और हांडी टेढ़ी हो गई या उसका मुंह टेढ़ा हो गया या उसमें कोई सुराख रह गया, तो उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होगी। बच्चे की ग्रूमिंग वो चीज है जिसके लिए वी आर आंसरेबल टू अल्लाह, टू द क्रिएटर। हम जवाबदेह हैं कि हमने क्या किया, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन है विच इज बॉर्न टू योर फैमिली। हम में से हर कोई यूनिक है, वी ऑल आर डिस्टिंक्ट जेनेटिकली। ये आप बड़े फख्र से ये बात कह सकते हैं कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। ये बम्बईया डायलॉग बन सकता है, मेरे जैसा कोई नहीं है, आई एम द ओनली वन। यस, वी ऑल आर द ओनली वन बिकॉज वी हैव ए यूनिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन। और ये समझिए एक नए फॉर्मूले की तरह है, जिसको अगर ढंग से लैब मिल जाए और इसको किसी केमिकल में ट्रांसलेट कर दिया जाए, सो वी विल हैव ए वंडरफुल एलिक्सर। तो वो बच्चा एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन के साथ पैदा हुआ है। अगर उसको हमने ग्रूम नहीं किया, उसे अच्छा इंसान नहीं बनाया, उसको अच्छी वैल्यूज नहीं दी, तो वो बच्चा वेस्ट हो जाएगा। वो सब कुछ बन सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, जेनेटिसिस्ट, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो उसकी सोच ठीक नहीं होगी, उसकी अप्रोच ठीक नहीं होगी। वो अगर डॉक्टर है तो वो ये नहीं देखेगा कि पेशेंट के पास पैसे हैं या नहीं है। वो जब हॉस्पिटल चलाएगा तो वो जब तक बिल क्लियर नहीं होगा, डेड बॉडी नहीं मिलेगी, और बिल्स विल रन इनटू लैक्स, क्योंकि उसे पैसा कमाना है। मैंने ऐसे स्कूल बनते देखे हैं। यहाँ मैं एक दूसरी चीज देखता हूँ जो आप लोगों ने बनाई है, कि डाउन स्केलिंग करी है। जो चीज मार्केट में 20,000 किया, उसे 2,000 में लेके आए। आपने कैम्ब्रिज को नीचे कर लिया, उसको लोगों तक लाने के लिए एफोर्डेबल बना लिया। कोई दूसरा कमर्शियल स्कूल मैनेजमेंट होता तो वो इसको मिल्किंग काउ समझता, उससे दूध लेता, खूब कमाता। जो करते हैं हम लोग देखते हैं किस तरह स्कूल हमारे यहाँ चल रहे हैं। एजुकेशन इज ए बिजनेस नाउ। देखिए, सबसे पहले हेल्थ इंडस्ट्री बिजनेस हुई थी। मैं कभी ख्वाब में नहीं सोच सकता था कि अस्पतालों में मुझे मार्केटिंग मैनेजर्स के रूम्स मिलेंगे और वो पोजीशंस मिलेंगी। तो मेडिसिन इज एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, दे आर मार्केटेड, वी हैव मेडिकल टूरिज्म। ये चीजें कभी सोची नहीं थी। आप जरा सोचिए कि हम कहाँ जाइए, सब वो इंसानियत का डाउनफॉल है। सेम इज हैपनिंग टू एजुकेशन। मैं जब स्टूडेंट था और किसी सब्जेक्ट में वीक था, तो मुझे वो टीचर्स याद हैं कि मैं उनके घर जाता था कुछ समझने के लिए, जिसको आज के जमाने में ट्यूशन कहा जाता है। वो एक पैसा नहीं लेते थे, उनके घर वाले मुझे चाय भी पिलाते थे बना के, बिस्किट भी खिलाते थे। आई वॉज सर्व्ड देयर, और मोहब्बत से पढ़ाते थे। सोच ये थी कि पढ़ाने का पैसा लेंगे हम, हाउ इट इज पॉसिबल। इल्म को बेचेंगे, माँ सरस्वती को बेचेंगे। मैंने वो बचपन देखा है, वो जमाना देखा है इसी मेट्रोपोलिस में, दिल्ली में, जो आज बहुत बुरी है, बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत गंदी है। लेकिन आई एम हैप्पी एंड आई विल डाई ए हैप्पी पर्सन कि मैंने अच्छी दिल्ली देखी है, मैंने अच्छे माहौल देखे हैं, मैंने अच्छे लोग देखे हैं, उन्होंने मुझे अच्छाई सिखाई है, और मैं मरते वक्त तक अच्छा रहूंगा, बना रहूंगा। क्यों? क्योंकि बचपन से ग्रूमिंग हुई थी।
तो जो यहाँ पेरेंट्स मौजूद हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्कूल चुना है। स्कूल अपना रोल अदा कर रहा है, पेरेंट्स को भी अपना रोल अदा करना है। ऐसा ना हो कि बच्चा एक दोहरी दुनिया में जीने लगे, कि स्प्लिट पर्सनैलिटी बन जाए, कि स्कूल में उसे कुछ और सिखाएं, आप घर में कुछ और सिखाएं। स्कूल में उसे बताएं कि इंसान अच्छा है, इंसान सबसे बड़ा है, आप घर में सिखाएं नहीं मुसलमान अच्छा है बाकी सब काफिर हैं। दिस इज एब्सर्ड। इससे ज्यादा एंटी कुरानी कुछ नहीं हो सकता। नोबडी कैन जज के काफिर कौन है, मुशरिक कौन है। मुझे ये सोचना चाहिए कहीं मैं अपनी हरकतों से काफिर तो नहीं हो रहा। मोहम्मद असलम परवेज नाम रख के कोई मुसलमान नहीं होता। आई एम व्हाट आई डू। मेरा अमल अगर इस्लामी है और मुसलमानों जैसा है तो मैं मुसलमान हूं, वरना मैं मुनाफिक भी हो सकता हूं, मैं मुशरिक भी हो सकता हूं, मैं काफिर भी हो सकता हूं, मैं फासिद भी हो सकता हूं, यानी मुफसिद भी हो सकता हूं, मैं फासिक भी हो सकता हूं। और मुफसिद हमारे यहाँ बहुत हैं जो फसाद फैलाते हैं। फसाद अरबी का लफ्ज है जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनडिसिप्लिन, इम्बैलेंस, इनइक्वालिटी, करप्शन, एवरीथिंग कम्स इन फसाद। उर्दू में फसाद को झगड़े के लिए यूज करते हैं, झगड़ा फसाद हो गया। बट फसाद इन मीन्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ इम्बैलेंसेस, इम्प्योरिटीज, इनइक्वालिटीज। फाइनेंशियल फसाद होता है जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होती है, जो मैन मेड होती है, नेचर में नहीं होती। देखिए, आई एम ए प्लांट साइंटिस्ट। सॉइल में जब आप पानी डालते हैं तो सी हाउ इट स्प्रेड्स। जिस पार्ट में आप सॉइल के पानी डालते हैं वो सॉइल उस पानी को पकड़ के नहीं रखेगा। इट जस्ट कैन नॉट डू इट। इट इज नॉट ऑथोराइज्ड। इट डजंट हैव द पोटेंशियल, द कैपेसिटी टू डू दैट। वो पानी को नहीं रोक सकता क्योंकि नेचुरल वाटर है, इट फ्लोज विद laws of diffusion. Everything moves from a region of high concentration to a region of low concentration, from a region of high free energy to a region of low free energy. कुरान यही कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ है, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, इस जमीन पे जो कुछ है वो तुम सबके लिए है। इससे बड़ा सोशलिस्टिक स्टेटमेंट नहीं हो सकता। What we have to do, keep your resources open, available to all, ईताज़िल कुर्बा। ये सूरह नहल की जो मैंने आयत अभी पढ़ी थी कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताज़िल कुर्बा, 3 चीजों का हुक्म दिया जाता है कुरान। इंसाफ कीजिए, एहसान कीजिए, डू गुड टू अदर्स, व ईताज़िल कुर्बा, पास वालों को दीजिए, पास वालों को दीजिए। जो भी आपके पास है, whoever is around you, share your resources with them. Share whatever you have, including your lunch, including your money, including your patronage, your help, your affection, everything. प्यार बांटते चलो, हर चीज बांटते चलो। वो एक गाना था, क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब है भाई भाई, प्यार बांटते चलो। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, ग्रूमिंग का हिस्सा है। घर में अगर माँ अपने बच्चे को लंच बॉक्स देके ये कहती है कि देखो किनारे बैठ के खाना, किसी बच्चे से शेयर मत करना वरना तुम भूखे रह जाओगे, तो उस माँ ने बच्चे को कत्ल कर दिया। यू हैव किल्ड योर चाइल्ड। उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दिया आपने, मार दिया उसको। आपको क्या कहना था कि बेटा लंच सबके साथ शेयर करना, किसी कोई बच्चा लंच पैक्स भूल आए तो तुम अपना लंच उससे शेयर करना, भले कि तुम तो बहुत बहादुर हो, भूखे भी रह सकते हो, सारा लंच दूसरे को खिला देना। जब तुम यहाँ आओगे तो बहुत अच्छा खाना मैं तुम्हें घर पे खिलाऊंगी। ये वो माँ है जिनके गोद से वो जनरेशन चलती है जो मदर टेरेसा जैसी औरतों को पैदा करती है। मैजिक नहीं हो जाता। मदर टेरेसा किसी मैजिक वैंड से नहीं बनती हैं, ये माँ की गोद में बनती हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट जितने हैं, अजीम प्रेम जी माँ की गोद में बनते हैं। जो देने वाले होते हैं उन्हें घर से देना सिखाया जाता है। आप घर में माहौल ऐसा रखिए, बच्चा देखे इस बात को कि हमारी एम्फेसिस देने के ऊपर है। डिस्कस कीजिए घर में कि भाई देखो इस महीने हमें थोड़ा बजट टाइट रखना है, क्योंकि वो पड़ोस में जो खाला रहती है उनके बच्चों की फीस देनी है, उनके घर पे कोई नहीं है। बच्चे को सुना, बल्कि ड्रामा कीजिए, उसे सुनाइए, आप खामोशी से मत दीजिए, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ ग्रूमिंग। हमारे बच्चे एवरेज हाउस होल्ड में सिर्फ पैसा लेने की और उसको खर्च करने की, किस मॉल में जाना है, कौन सा सूट पहनना है,
दो चीजें वो माँ से देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि जब माँ के मायके वाले आते हैं तो माँ का एटीट्यूड क्या होता है, और जब इन लॉज आते हैं तो एटीट्यूड क्या होता है। ये पहली चीजें जो वो रीड करते हैं। और बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, आप उसको बच्चा कह के यू जस्ट कैन नॉट राइट हिम ऑफ। जब तक आप उससे समझते हैं कि अभी ये बच्चा है, से 5 साल की उम्र तक, 5 साल तक वो सब कुछ समझ चुका होता है, बोल नहीं पाता बट ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। जब भी तो 6 साल के बच्चे को स्विमिंग करा लेते हैं, आपको बहुत से क्लिप्स मिल जाएंगे वेस्ट के और किन किन कंट्रीज के। वो सब समझ रहा है कि अम्मा क्या रिएक्शन क्या है, क्या फीचर्स हैं, क्या है, कैसी खातिर हो रही है, क्या है। फिर वो ये देखता है कि कोई दोस्त आ गए, फादर ने कह दिया कह दो नहीं है घर पे, नहीं है। हम उसे सिखाते हैं कि बेटा सच बोलना है हमेशा। घर में वो ये देखता है कि शादी का आना वाला है, किसी का फंक्शन है, तो अब घर में बात हो रही है कि मैंने ये ड्रेस उसकी शादी में पहना था, इसको मुझे रिपीट नहीं करना, मुझे ये ड्रेस वहां से लेना है, वाला डिजाइनर सूट लेना है। कभी गरीब को खाना देने में, कपड़ा देने का डिस्कशन बहुत कम घरों में होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, ये मैं पेरेंट्स से खास तौर से एड्रेस करूंगा, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप बच्चे की ग्रूमिंग नहीं कर रहे। आप अल्लाह क्या जवाब दे हैं कि आपने उसे इस्लाम नहीं सिखाया। इस्लाम देने की बात करता है, ईता ज़िल कुर्बा। जब जब आप दूसरे को देने की बात नहीं कर रहे हैं, आप कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं, कुरान की तकजीब कर रहे हैं। यू आर नेगेटिंग कुरान। और उसमें भी आप अगर कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं तो आप मान सकते हैं इसको, लेकिन जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है वो कभी नहीं मानेगा। यू विल हैव टू डू व्हाट यू क्लेम, यू मस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू क्लेम। हम लोग जो हैं वो क्लेम करते हैं, बाय प्रैक्टिस नहीं है। झोला छाप डॉक्टर सच्चा डॉक्टर नहीं है। तो ये मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आप ओरिजिन, मुझे किसी ने नहीं बताया था नमाज रोजे के अलावा कि मुझे जस्टिस करना है। और आप यकीन जाने, इस जस्टिस की वजह से अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के कैरियर में मिनिस्टर्स की सिफारिशें, सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिफारिशें, मैंने सिलेक्शन कमेटी में जो बेस्ट था वो ही लिया। आई डिडंट केयर फॉर एनीबॉडी। इसीलिए एक मुतमईन जिंदगी गुजारी। आई एम ए हैप्पी पर्सन। मुझे जो दिया ऊपर वाले ने दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो उसको देना था दिया, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, बिकॉज आई वांट टू सर्व पीपल। मुझे पूरी उम्र खिदमत में गुजारनी है, क्योंकि मुझे लोगों को ये बताना है कि इस्लाम ये नहीं है। देखिए, इस्लाम में बड़ी अहमियत ईमान की है। ईमान का मादा है अलिफ मीम नून, जो अमन का मादा है। मोमिन अमन को इंश्योर करता है। अल्लाह के एक 99 नामों से एक नाम अल मोमिन भी है, बिकॉज गॉड एंश्योर्स पीस। सो इफ यू आर ईमान वाले, अगर आप ईमान वाले हैं, यू मस्ट एंश्योर पीस। अगर आप पीस एंश्योर नहीं करते तो आप ईमान वाले नहीं हैं। और ईमान में आने के बाद इस्लाम में आने का काम शुरू होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। ए लोगों जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। बिकॉज इस्लाम में आने का प्रोसेस है पूरा, जो डे टू डे बेसिस पे चलता है। बट वंस यू सेड कि मैं ईमान ले आया, तो ईमान लाने का ये मतलब नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, या अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नो, इट इज अ सिस्टम ऑफ पीस विच यू आर एक्सेप्टिंग। ईमान बिल्लाह, क्योंकि अल्लाह का, गॉड का सिस्टम पीसफुल है। नेचर इज पीसफुल। आप जंगल में, पहाड़ों पे क्यों जाते हैं? शांति की तलाश में ना, क्योंकि वहां प्रकृति है, वहां नेचर है। जहां नेचर है वहां क्रिएटर है, जहां क्रिएटर है वहां शांति है। तो वो तो शांति वाला है। आप भी शांति दूत बनिए, वरना आप मुसलमान तो हो ही नहीं सकते, ईमान वाले है ही नहीं आप। जब आप ईमान में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए कोई प्रोसेस डेवलपमेंट का, कोई कंट्री अगर वॉर में है तो उसका डेवलपमेंट पर रुक जाता है। इट्स सिंपल। आज पूरा मिडिल ईस्ट, सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्री, जो बड़े झंडे उठाते हैं इस्लाम के, सब लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। एंड दे क्लेम वी आर मुस्लिम्स। फनी, रियली फनी, रिडिकुलस, गलत फहमी है। तो जब वार होती है तो डेवलपमेंट नहीं होता। जब तक पीस नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। इस्लाम सीन लाम मीम, रूट मैटर इज सीन लाम मीम। इस सीन लाम मीम के माध्यम इस्लाम में भी अमन है, और ईमान में तो अमन है ही। तो जब आप अमन में रहेंगे और हर एक को अमन इंश्योर करेंगे, जब भी आपका डेवलपमेंट होगा, स्पिरिचुअल भी और मटेरियलिस्टिक भी।
अगर आपका जहन सुकून से नहीं है, इफ यू आर नॉट एट पीस विद योरसेल्फ, यू कैन नॉट बी एट पीस विद अदर्स। आप कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते, कोई रिसर्च पेपर नहीं लिख सकते, कोहेरेंटली बात नहीं कर सकते। सो यू मस्ट एंश्योर पीस, एंड दिस इज ईमान। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव एक्सप्लेन ईमान दिस वे, क्योंकि ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ईमान का। वरना हमारे ईमान जो है वो कलमों से जुड़ा हुआ है और कुछ अपीयरेंस से जुड़ा हुआ है कि ऐसा ड्रेस पहन लो, ऐसे हो जाओ तो ईमान वाले हो गए। चेक विद कुरान, कुरान क्या कह रहा है? ड्रेस इज इमेटीरियल, ऑल ड्रेसेस आर गुड टिल दे आर डिसेंट। सिविल सोसाइटी में आप अच्छे इंसान की तरह रह सकते हैं, जानवर की तरह ना रहिए। जानवर की तरह रहते हैं तो जब आप सिविक भी नहीं है, बाकी तो भूल जाइए। तो एक सिविलाइज्ड जेंटलमैन की जो कंसेप्ट होती है, बात से बात निकल रही है, टाइम बहुत निकल रहा है, मैं वाइंड अप करूंगा, लेकिन इसमें अगर कोई मैसेज मैं दे सकता हूं, क्योंकि देखिए मैं फिर नाहल पे आता हूं कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, यू हैव टू डू जस्टिस। हस्बैंड को वाइफ के साथ जस्टिस करना है। शाम को ऑफिस से आ रहे हैं तो मुंह बना के घर में मत घुसरिए कि बहुत थका हुआ हूं मैं, तुम पानी लाओ, तुम चाय लाओ, तुम जूते उतारो। अरे आप थके हुए होंगे, लेकिन दिन भर कोई आपके घर में इंतजार कर रहा है। आपकी वाइफ, आपके बच्चे, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू थ्रू आउट द डे। एंटर विद ए स्माइल। घर में ऑफिस में तरह काम किया, 2 घंटे घर में और दीजिए, उनके साथ खुश रहिए। वाइफ से कहिए कि नहीं आज चाय मैं बना के लाऊंगा, तुम बैठो, तुमने दिन भर बहुत काम किया है, बच्चों को हैंडल कर रही हो, घर संभाल रही हो। दूसरे के लिए थिंक फॉर अदर्स। मुसलमान छोड़ दीजिए, अच्छा इंसान हमेशा दूसरे के लिए सोचता है। सबसे बड़ा जजमेंट यही है, देख लीजिए कि जिससे आप डील कर रहे हैं, वेदर ही और शी थिंक्स फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ और फॉर अदर्स। वो इंसान ही नहीं है जो दूसरे के लिए ना सोचे। कुरान के तो हुक्म है, आप मुसलमान तो डरना चाहिए कहने से पहले कि मैं मुसलमान हूं। वी आर बॉर्न टू सर्व अदर्स, शेयर एवरीथिंग विद अदर्स। अच्छा बोलना है। अब देखिए वाहसिनु, इतना इंपॉर्टेंट हुक्म है कुरान का, एहसान करो, डू गुड टू अदर्स। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से। दूसरी जगह कुरान में कहता है कि अल्लाह की रहमत, द मर्सी ऑफ गॉड इज विद द पीपल हु डू गुड टू अदर्स। तो मर्सी ऑफ गॉड इज विद दोज हु डू गुड टू अदर्स। अल्लाह की रहमत उन लोगों के साथ है जो दूसरों के साथ एहसान करते हैं। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो दूसरों के साथ ऐसा। आप बताइए कौन है ऐसा होगा जो इस चीज को पसंद ना करे कि अल्लाह की, गॉड की मर्सी उसके साथ हो और अल्लाह उससे मोहब्बत करे। हम तो ये दुआ मांगते हैं, ये तो ड्रीम डेस्टिनेशन है कि क्रिएटर आपसे मोहब्बत करे और उसकी मर्जी हमेशा आपके साथ हो। कुरान टेल्स द सिंपल फॉर्मूला, डू गुड टू अदर्स, सिंपल। वाहसिनु, डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ एहसान कीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा काम कीजिए। डू गुड विद योर बिहेवियर, विद योर मैनर्स, विद योर डीड्स, विद योर एक्शन, विद योर मनी, एवरीथिंग। और इसका उल्टा होता है जो फसाद मैंने आपको बताया कि क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, इसको कुरान ने मना किया। वला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद मत फैलाओ। किसी भी तरह का इम्बैलेंस, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, पॉल्यूशन मत फैलाओ। कचरा बाहर मत डालो, कूड़ा बाहर मत फेंको। डोंट पॉल्यूट वाटर, डोंट पॉल्यूट एयर। गाड़ी की ट्यूनिंग अच्छी रखो, जहां तक अवॉइड कर सको मत ड्राइव करो। यूज साइकिल, हेल्थ भी अच्छी होती है। लेकिन नेचुरली जब ट्रैफिक बहुत है, साइकिल तो सरवाइव नहीं कर सकते। गो फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये शान दिखाने की चीज नहीं है कि मैं मर्सी में आ रहा हूं, झूठी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हमें स्क्रिप्चर से मिलती है। मेरी बात बहुत लंबी हो गई और आई अप्रिशिएट द मैनेजमेंट कि किसी ने कोई मुझे सिग्नल नहीं दिया। मायरा भी चुप बैठी है, आकांक्षा मैडम भी चुप बैठी है और डायरेक्टर साहब भी चुप बैठे हैं। नेचुरली दे रेस्पेक्ट गेस्ट, मेरी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन मैंने टाइम बहुत ले लिया। लेकिन जी इतना चाह रहा है आपसे बोलने के लिए, क्योंकि आप इतने अच्छे लोग हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं? साइंटिफिकली कह रहा हूँ कि जो इतना अच्छा स्कूल चला रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हैं, मेरे चाह रहे जी उनसे बोलता रहो। क्योंकि मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, ऐसी बातों को जो मैं करता हूँ सुनने वाले भी अब ज्यादा नहीं मिलते हैं। प्रैक्टिस करने वाले तो छोड़ दीजिए, पीपल डोंट लाइक इट। मुझे वो बातें नहीं आती जो आजकल लोगों को अच्छी लगती हैं, और जो आजकल लोग बातें करते हैं मुझे अच्छी नहीं लगती। सो आई एम ए लोनर।
मैं अकेला जिंदगी गुजारता हूँ। बड़ी अच्छी गजल है वो, हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। तो हम सफर बहुत होते हैं, हम नवाई नहीं होती, क्योंकि पीपल डोंट थिंक अलाइक। मैं साइंटिफिकली बात करता हूँ, साइंटिफिकली सोचता हूँ। आई डोंट हैव एन ऑब्सेशन, आई हैव ए साइंटिफिक कमिटमेंट। सो थैंक यू वेरी मच। जिंदगी रही फिर कभी बात करूंगा आप लोगों से, पेरेंट्स से जिनको मैं यहाँ देख नहीं सकता, लेकिन मेरी दिल की आंखें उन्हें देख रही हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा स्कूल सुना। आप सब टीचर्स को खास तौर से, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता बिना टीचर्स के, और उन टीचर्स को मैनेज करने वाले को, और सच ए यंग लेडी, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी आकांक्षा। इतने छोटी छोटी उम्र के लोग कितने कैपेसिटी रखते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई सैल्यूट यू, आपको सलाम है, प्रणाम है, गॉड ब्लेस यू। और आपको ब्लेस करेगा गॉड, मैं साइंटिफिकली कह रहा हूँ। क्योंकि व्हेन यू, देखिए, अगर आप गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही काटेंगे। ये मकाफात अमल कहलाता है, जिसको कर्मा कहा जाता है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता है कि आपके साथ बुरा हो, इम्पॉसिबल। इसीलिए मे गॉड ब्लेस यू मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ गॉड विल ब्लेस यू, बिकॉज यू हैव आस्क्ड फॉर इट, यू विल गेट इट। थैंक यू वेरी मच। खास तौर से मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे डायरेक्टर साहब का, अतीक साहब का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया। इट वॉज ए वंडरफुल डे। You have not only made my day, but I would say you have made my month or years altogether. जिंदगी रही फिर मिलेंगे आपको। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Thank you so much, sir.